Afternoon students, I hope you all are safe at your homes and doing all your maths exercise properly and watching all your videos carefully. So students, today I am going to start a new chapter which is unit 14, money. So today we are going to learn about money. Let's start with the chapter. Your chapter is on page number 116, unit 14, money. So the very first question that comes to your mind is what is money? Yeah, why we need money? So money is a unit, and why we need money? We need money to buy things, to purchase goods in order to make our life easy and facilitative. Okay, so money is the thing from which we can buy things. So you all have to underline this line. We buy things with money, and in India the unit of money is the rupee, because we do transactions of money. हम लोग goods को खरीदते हैं, we buy goods, we purchase goods in rupee only. Okay, 1 rupee is equals to 100 paise. 1 rupee is equals to 100 paise. We use coins and notes of different values as money. हम लोग coins भी use करते हैं as money and different notes also we use as money. Is it clear? Okay. So next, the thing which we have is we use the short terms RE for rupee, RS for rupees and P for paise. Okay. So this symbol is also used for rupee or rupees. This is a symbol which we uses for rupee or rupees. 1 rupee can be written as RE1 or this symbol 1. 15 rupees can be written as RS15 or the symbol 15. But paise will only be written as P. Is it clear? Now we have to learn about changing rupees to paise or paise to rupees. As I just told you that 1 rupee is equals to 100 paise. So in order to convert anything into paise, you have to multiply that with 100. Okay, अगर आपको 2 रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है तो you have to multiply 2 rupees with 100. So you will get 2 into 100 is equals to 200 paise. Okay, let's do our exercise. Exercise 14A. Question number 1 is to change to paise. First question is rupees 5. You have to convert this rupees 5 into paise. You all know that 1 rupees is equals to 100 paise. So if you want to convert rupees 5 into paise, you have to multiply 5 with 100, which in turn equals 500 paise. So what you will write here? You will write here 500 paise, because 5 rupees is equals to 500 paise. Similarly, when you convert this rupees 68 into paise, you have to multiply 68 with 100 and you will get 6800. So this will be 6800 paise. Okay, clear? Now let's do this D part. It is little bit different. Rupees 8.50. बेटा this is point. कुछ confusion नहीं होना, point में घबराने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको इसे convert करना है पैसे में तो you will write rupees 8 as it is. आप फिर प्लस लगाएंगे. This will become your पैसे 50 पैसे. 0.50 या पॉइंट के बाद जो भी डिजिट होगी that will convert into पैसे. अब आपको ये तो ऑलरेडी पैसे में आपका कन्वर्ट हो चुका है. यू जस्ट ओनली हैव टू कन्वर्ट रुपीज़ 8 इंटू पैसे. अगर 1 रुपी में 100 पैसे हैं तो 8 रुपीज़ में हाउ मेनी पैसे विल बी देयर? 800 पैसे. 800 पैसे में आप 50 पैसे ऐड करोगे, यू विल गेट 850 पैसे. सो व्हाट यू विल राइट हियर? रुपीज़ 8.50 इज इक्वल्स टू 850 पैसे. इज इट क्लियर? समझ में आया? ऐसे ही आप ई पार्ट और एफ पार्ट खुद से सॉल्व करेंगे. फाइन. नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ चेंज टू रुपीज़. इस क्वेश्चन में आपको रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट करना है. सो सेकेंड क्वेश्चन में योर फर्स्ट पार्ट इज 3225 पैसे. सो बेटा आपको अभी मैम ने समझाया दैट 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसे. आपको यहाँ पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो आप लिख सकते हो 1 पैसे इज इक्वल्स टू 1/100 रुपीज़, है ना. आप लिख सकते हो ना 1 पैसे में 1/100 रुपीज़ होंगे.
तो अगर आपको 3225 पैसे में फाइंड आउट करना है हाउ मेनी रुपीज़ आर देयर, तो यू हैव टू डिवाइड द नंबर विथ 100। आपको इसे 100 से डिवाइड करना होगा। लेट्स डिवाइड इट विद 100। 100 से डिवाइड करते हैं, व्हाट यू विल गेट, 100 3 ज़ा 300, माइनस किया यू विल गेट 225, 100 2 ज़ा 200, you will get minus 25. So your quotient is rupees 32 and your remainder will be पैसे। तो आप उसको डेसिमल लगा के लिखोगे, ठीक है। जो आपका रिमाइंडर होगा उसको लगाने से पहले आप पॉइंट लगाएंगे। तो आपको यहाँ से क्या चीज़ समझ में आई, आपको ये समझ में आया वेन एवर यू हैव टू कन्वर्ट एनी पैसे इनटू रुपीज़, आपको जस्ट क्या करना है, लास्ट से 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगाना है, ठीक। फॉर एग्जांपल अगर इसी क्वेश्चन में आपका बी पार्ट है, मैं इसको यहाँ लिखती हूँ, दिस इज़ योर बी पार्ट, 265 पैसे। आपको क्या करना है, 265 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो आप 265 को 100 से डिवाइड करोगे और वो रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। डिवाइड नहीं कीजिए, अगर आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो आप क्वेश्चन में ही जो आपका नंबर है 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा दीजिए और आपका ये पूरा सॉल्व हो जाएगा रुपीज़ के अंदर। इज़ इट क्लियर? इफ़ यू स्टिल हैव कन्फ्यूजन, लेट्स डू इट इन आवर बॉक्स। क्या करना है आपको पूरे नंबर को एज इट इज़ लिखना है, लास्ट से 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगाओ एंड दिस विल कन्वर्ट इनटू रुपीज़। सिमिलरली आपको इसमें करना है, पूरा नंबर नोट करो, लास्ट से 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगाओ एंड दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू योर रुपीज़। दिस इज़ अ ट्रिक टू डू दिस क्वेश्चन ईजिली। फॉर एग्जाम्पल आपको 45,325 पैसे को कन्वर्ट करना है रुपीज़ में। राइट डाउन द होल नंबर 45,325, लास्ट से 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगाइए एंड दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू योर रुपीज़। इज़ इट क्लियर? समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3 विल बी योर होमवर्क, बिकॉज इसमें किसी रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है एंड सम पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो ये इन्हीं दोनों क्वेश्चन का मिक्स है, तो यू हैव टू कंप्लीट इट। कोई भी प्रॉब्लम आपको इस क्वेश्चन में आते हैं, यू कैन आस्क मी इन द जूम मीटिंग, बट यू हैव टू सॉल्व ऑन योर ओन so that you will understand it more properly. Okay, so now let's move further. Addition and subtraction of money, बहुत सिंपल होता है addition and subtraction. To add or subtract money, write the rupees and पैसे in separate columns or with a point between them. या तो दोनों को सेपरेट कॉलम्स में लिखो या फिर उनके बीच में एक पॉइंट लगाओ, फिर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करो ऑर्डिनरी नंबर्स की तरह, ठीक है। हम लोग पॉइंट यूज़ करते हैं रुपीज़ और पैसे को सेपरेट करने में, तो पुट द पॉइंट इन द आंसर्स टू, तो आप आंसर में भी पॉइंट को यूज़ करो। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिया है, फाइंड रुपीज़ 142.65 प्लस रुपीज़ 23.50 प्लस रुपीज़ 10, ठीक। अब आपको इसको ऐड करना है, आपने रुपीज़ और पैसे को अलग अलग लिखा, 142 रुपीज़ 65 पैसे, 23 रुपीज़ 50 पैसे, 10 रुपीज़ पैसे कुछ भी नहीं है उसमें, तो यू हैव टू राइट ज़ीरोज़ देयर, देन उसको ऑर्डिनरी नंबर की तरह ऐड कर दो, बिल्कुल डायरेक्ट। जब आपने उसको ऐड किया, आंसर्स में भी आपको 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगाना पड़ेगा, बिकॉज आपके क्वेश्चन में भी 2 डिजिट से पहले डेसिमल्स था। इज़ इट क्लियर? आपको ये चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होंगी जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टू वन क्वेश्चन, बेटा यू ऑल हैव टू सी इट केयरफुली। एक्सरसाइज 14B में फर्स्ट का ए पार्ट देखो, रुपीज़ के नीचे नथिंग इज़ देयर बट इन पैसे यू हैव वैल्यूज़, तो लेट्स ऐड देम। 0 + 0 इज़ 0, 4 + 2 इज़ 6। बिकॉज रुपीज़ के नीचे नथिंग इज़ देयर, तो योर सोल्यूशन विल बी 60 पैसे ओनली, ठीक है। लेट्स कंप्लीट दिस वन ऑल्सो। 0 + 5 इज़ 5, 5 + 7 इज़ 12 का 2, 1 कैरी इधर, यहाँ पे हम 0 लगाते हैं, दिस विल बी 1। सो हेयर योर आंसर विल बी रुपीज़ 1 and 25 पैसे। तो आप बीच में एक पॉइंट लगा सकते हो। अगर आप बीच में पॉइंट लगाते हो तो आपको पैसे नहीं लिखना है, यू डोंट हैव टू राइट पैसे, इट विल बी रुपीज़ 1.25। इज इट क्लियर? लेट्स डू सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ऑल दीज क्वेश्चन यू हैव टू डू ऑन योर ओन। सो सेकेंड के फर्स्ट पार्ट में 5 + 0 इज़ 5 ओनली, 5 + 3 इज़ 8, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाओ। 0 + 0 is 0, 2 + 4 is 6 and 3 as it is. So this will be rupees 360.85. Is it clear? Let's do C part. 7 + 0 will be 5 + 0 will be 5, 7 + 5 will be 12 का 2, 1 कैरी, कैरी से पहले आप पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ। 1 + 1 is 2, 2 + 8 is 10 का 0, 1 कैरी, 1 + 0 is 0, 0 + 2 is 2,
0 + 2 + 1 is 3. ओके, पूरा 3 हो जाएगा. 5 + 1 is 6. So your answer will be rupees 630.25. Is it clear? In questions में nothing is there, you just have to add the terms. डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाओ और बाकी सबको एज इट इज़ ऐड करो. आई एम डूइंग वन मोर पार्ट फॉर ऑल ऑफ यू, दिस वन. 5 + 5 + 5 10, 10 + 0 is 0, 1 कैरी. 1 + 5 6, 6 + 2 8, 8 + 3 11 का 1, 1 कैरी. पॉइंट लगाया. 1 + 1 2, 2 + 6 8 और 8 16 का 6, 1 कैरी. 1 + 7 8, 8 2 = 16, 8 8 = 16 होता है. 17 18 19 20 21 22, 22 लिखा. 2 कैरी. 2 2 4 5 6 7 8. सो योर आंसर हियर विल बी रुपीज़ 826.10. ठीक. अब अगर आपको ऑलरेडी अरेंज दिया है क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको अरेंज नहीं है, फॉर एग्जांपल आपको फोर्थ का फर्स्ट पार्ट करना है, लेट मी राइट इट हियर. फोर्थ का फर्स्ट पार्ट इज़ रुपीज़ 96.35. आपको ऐड करना है विद रुपीज़ 37.85. अगर आपको कॉलम्स में नहीं दिया तो आपको बहुत ईजीली उसको लिखना है. रुपीज़ 96.35, नेक्स्ट वाला रुपीज़ 37. जस्ट टेक केयर कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आए एंड देन ऐड द नंबर्स को ऐड करो. 5 + 5 is 10 का 0, 1 कैरी. 1 + 3 is 4, 4 + 8 कितना होता है 12 का 2, 1 कैरी. डेसिमल के नीचे डेसिमल. 1 + 6 is 8, 8 + 7 is 1 + 6 is 7, 7 + 7 is 14 का 4, 1 कैरी. 1 + 9 is 10 और 3 13. सो योर आंसर विल बी रुपीज़ 134.20. ठीक है. डेसिमल्स का ध्यान रखना है और आप उसको बहुत अच्छे से ऐड कर पाओगे. कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एडिशन में. ट्राई टू डू दिस क्वेश्चंस. नहीं होते हैं तो जूम मीटिंग में आप बिल्कुल पूछ सकते हैं. लेट्स डू सब्ट्रैक्ट. क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट. जैसे आपने ऑर्डिनरी नंबर्स को ऐड करते हो, ऐसे आप ऑर्डिनरी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो. कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है. पैसेज में आपको 80 और 45 दिया, यू जस्ट हैव टू सब्ट्रैक्ट. 0 से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता तो हम बोरो करते हैं. This will become 7 and 0 will become 10. 10 - 5 is 5. 7 - 4 is 3. So you will get your answer 35 पैसे. ठीक है. इसके बाद आपका बी पार्ट है जिसमें आपको रुपीज़ गिवन है, पैसेज गिवन नहीं है, तो आप सिमिलरली उसको भी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. 7 will become 6, 0 will become 10. 10 - 5 is 5 and 6 - 2 is 4. This will be your rupees 45. Okay. Now let's do one more question. Let's say D part में आपको करती हूँ, आपके लिए करती हूँ. 5 - 0 is 5. 2 - 5 is not possible, तो आप इस तरह से भी बोरो कर सकते हो. 12 - 5 is 7. ओके. सो अब आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखोगे. आप चाहो तो यहाँ पे डेसिमल लगा सकते हो, नहीं तो आप उसको रुपीज़ सेपरेटली लिख सकते हो. अब 6 - 8 तो पॉसिबल नहीं है, तो आपने एक बोरो किया. 16 - 8 is 8. 8 - 6 is 2. So your answer will be rupees 68 and 75 पैसे. It's rupees 28 and 75 पैसे. ओके. 68 तो ऊपर लिखा हुआ था. चलो let us do this part जिसमें पॉइंट्स दिया हो. 5 में से 5 गया 0. 2 में से 4 नहीं जा सकता तो आप बोरो करो. दिस विल बिकम 2, दिस विल बिकम 12. 12 - 4 is 8. अब आगे सॉल्व करने से पहले आप डेसिमल लगाओगे क्योंकि आपके क्वेश्चन में भी डेसिमल है. 2 - 8 नॉट पॉसिबल. आपने यहाँ पे लिखा 5. दिस विल बी 2. 12. 12 - 8 is 4. 5 - 2 is 3 and 7. So your solution is rupees 734.80. बेटा don't forget to write these rupees and पैसाज in your questions because money वाले questions में these things are more important. ठीक है. चलो इसके बाद मैं आपको और क्वेश्चन बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं 7th का आपके लिए बी पार्ट करती हूँ इन द पेज. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 7 बी पार्ट. दिस इज rupees 679.0 and you have to subtract it with 128.65. just you have to take care कि डेसिमल के नीचे डेसिमल है. ये जो पॉइंट इसमें लगाया ना क्वेश्चन में, ये दूसरे के नीचे ही हूँ. 0 में से 5 नहीं जाएगा, इसमें से भी नहीं जाएगा. यहाँ से बोरो किया, दिस विल बिकम 10. फिर यहाँ से बोरो किया, ये 9 बना, दिस विल बिकम 10. 10 - 5 is 5. 9 - 6 is 3. पॉइंट. 8 - 8 is 0. 7 - 2 is 5 and 6 - 1 is also 5. So your answer will be 550.35. Is it clear? अब जैसे 8th का ए पार्ट है, इसको भी सॉल्व करते हैं. रेस्ट क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हो. रुपीज़ 127 को सब्ट्रैक्ट करना है 15.70 से. देखो 127 में कोई पॉइंट नहीं है तो आप नंबर के बाद पॉइंट्स लगाइए
और नेक्स्ट नंबर में आपको क्या दिया है 15। तो बेटा ध्यान रखो डेसिमल से पहले 5 है, फिर उससे पहले 1 है, डेसिमल के बाद 7 है, उसके बाद 0 है। यू हैव टू सबट्रैक्ट दीज नंबर्स। ठीक, हमेशा ध्यान रखना आप किस तरीके से डिजिट्स को नोट कर रहे हो। 0 minus 0 is 0, this will be 6, this will become 10, 10 minus 7 is 3, पॉइंट लगाओ, 6 minus 5 is 1, 2 minus 1 is 1 and this will be 1. So your solution will be 111.30. Is it clear? Rest of the questions you all can do on your own. So complete this exercise my dear children and ask your doubts in the Zoom meeting. Okay? So goodbye and take care.